I, Dr. Rekha Milwani, being the mentor of the Finance Club with my colleague Dr. Namrata Soni, welcome you all in this financial literacy and awareness program. Respected Director Sir Dr. Josh Thomas, Joint Registrar Sir Dr. Arvind Singh, Dr. Abhijit Chatterjee, Head Department of Management, Dr. Shama Petinkar, Head Department of Computer Science, faculty colleagues, and my dear students. As financial literacy is critical because it equips the person with the knowledge and skills that is needed to make strong financial decisions. It is a way to manage money effectively. In the journey of knowledge, today we have the opportunity to enhance the understanding more on financial literacy and awareness programs. It is a matter of immense pleasure that we have with us CA Mr. V.K. Jain from Jaipur. I am pleased to share the brief profile with the audience. CA Mr. V.K. Jain is a practicing chartered accountant. He has the vast experience of conducting classes and training in the field of CA and MBA as an internal and external faculty. He also has the experience of stock and share broker as well as the financial consultant from the consecutive 15 years. He has conducted many investor awareness programs by ICAI for the last 7 years and conducted more than 300 programs. He has also conducted IAP chit fund and Fonzi schemes at various cities of Chhattisgarh organized by ICAI in coordination with the Director of Institutional Finance Government of Chhattisgarh. Sir has also acted as a faculty member in the various orientation and GMCs and MCS program conducted by Institute of Chartered Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India at the various branches, OTS Jaipur, Regional Training Institute, AG Office Jaipur, Institute of Cooperative Management Jaipur, and various other centers. He also served as a guest faculty for EDP, FTP, and skill development programs conducted by various institutes. We welcome you, sir. I'm delighted to hand over the mic to sir. Sir, thank you very much for having the time to back, and we welcome you in this session. Please, sir. Thank you, Dr. Rekha. Hello and good afternoon to one and all. A very warm welcome to all of you. I'm really thankful to the organizing and managing committee, your director sir, your principal sir, joint registrar sir, and Rekha Malwani, who was I was in touch with her for past 2-3 days, and Dr. Nirmala Soni, all faculty members and all the students who have given me an opportunity to share my views on this important and very much talked about subject, that is financial literacy. It's really very interesting, very important, and very practical subject for all of us. It's really an honored privilege to be amongst you. Thank you all once again. So now, let me tell you something about the program. Basically, it is a financial literacy and awareness program, and it is designed for the students. It is organized by Pagdandi Edusol Private Limited, and it is under the aegis of IEPF, that is Investors Education and Protection Fund, and it is constituted under Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and it is sponsored by NSE, means National Stock Exchange. So now the question arises, why this financial literacy at this early stage? It's a movement towards creating financially literate and intelligent India. So why financial education? It's a good question, which leads to a good answer. It's an ability to make smart financial decisions so that we may get desired financial outcomes. It's not only knowing about complex and complicated financial concepts, financial terminology, financial ratios, but it is a very simple and easy way of understanding about
basics of finance, so that one can make good and practical financial decisions in his or her practical life to come. It's quite possible, and many of you will agree with me, some school and college dropouts students may be more financially literate and financially successful than our so-called, PhDs, MBAs, or chartered accountants. In fact, most educational institutions, they focus on scholastic and professional education during the entire course curriculum. They rarely teach much about finance, which is a very important aspect. So, scholastic and professional education we get in college, but so far as financial education is concerned, we normally people get when they come in their practical life. Qualified people, they are seen struggling in their practical life. They know how to make money, but unfortunate part is they do not know how to manage money. So they are seen working for those who know how to manage it. School and colleges, we train our students for hard working. The mindset of the students, that is, I want to work hard so that I may get good grades. Why I need good grades? So that I may get a good job. This is, almost 90 to 90% people, particularly at the student level, they have this kind of mindset. So what we did, we job seekers, we have, एक हमने फौज बना दी है जॉब सीकर्स की rather than job providers. 90% or 95% students are of this mentality. Can entrepreneurship is missing somewhere? So when can't we teach them some financial concepts, some basic lessons of money and finance and skills in a soft way at their school and college level? Believe me, failures are due to financial mismanagement. Nowadays, finance is such an important thing due to, time factor, I may say. Nowadays, nobody can say that finance is not my responsibility or it is not my subject. Funnily, we say it is the commerce people to look after for that. It is their problem to solve. It is them to decide. Nowadays, every action has a financial implication. People generally confuse money with wealth. Yes, my dear students, money may come, money may go, but only sustainable wealth is financial education, skill and training. पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे कमाए हुए को मैनेज करना, I think to manage money is more important than to earn money. Why can't we grab financial concepts at the college level? What is savings? What is inflation? How it affects our day-to-day life? How it eats away our savings? And what are liabilities, what are income, what is expenses? These are very, very small things to learn about. Everyone is expected to have the basic knowledge about that. What is power of compounding, how it works, it's really an amazing power to, wealth create, it helps. What is compounding, what is the stock market, mutual funds, and many, many more. So we can, in government job, normally students have their preconceived notions or certain kind of mindset that I want a government job. Government job में कोई बुराई नहीं है, but in government job they are looking for certain amount of security and of course pension. Time के लिए देखते हैं, time is the best. It is ever changing. We need to change ourselves according to time. Otherwise, time will change us accordingly. ज़्यादातर लोगों का mindset क्या है? I need to have a government job. वहाँ पे what he or she is looking for, some financial security. और उसके बाद एक पेंशन. अभी तो आजकल तो पेंशन बंद हो गया है, but yes, पेंशन का एक पहले एक दिमाग के अंदर रहता था, यानी as long as I am working, I am getting my salary, and when I get retired, I am getting the pension. और pension वो it was 3 or 4 times higher than
the salary which we were getting. So this kind of mindset is there. Now, अभी तो पेंशन बंद हो गया है, तो वो पेंशन से अपन शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट. यानी पेंशन में वो पेंशन होती क्या थी, देखिए पेंशन एक कैसे हमारा माइंडसेट बदलता है. Why can't we teach our students कि भाई हार्ड वर्क करिए, अच्छा ग्रेड्स लेके आइए. अगर कोई जॉब में जाते हैं तो जॉब में इफ यू कैन हायर एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर अ जॉब प्रोवाइडर, सो देन यूज दिस स्किल, यूज दिस टैलेंट टू क्रिएट मोर मनी, टू अर्न मोर मनी, टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट. सो पेंशन की अगर हम बात करें तो पेंशन में हाउ पेंशन वाज स्टार्टेड, इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी भी होती है कि भाई एक व्हेन अ पर्सन अटेन्स द एज, एक सर्टेन एज में आते हैं तो वहां पे एक फाइनेंशियली एक सपोर्ट सिस्टम इट इज रिक्वायर्ड एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर. बट नाउअडेज इट इज नो मोर देयर. सो पेंशन में होता था व्हेन वी वर सर्विंग, जब हमारे सर्विस टेन्योर में हम होते थे तो मंथली एक सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट इट वाज deducted from our salary, and simultaneously the employer contribution and government holds it and invests it in long term, because government was pretty sure about the liability, financial liability will not arise unless and until a person attains the age of 60 years. उसके बाद उनका फाइनेंशियल लायबिलिटी शुरू होता था. तो यानी वो गवर्नमेंट उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाती थी सो दैट उसके रिटर्न आने लगते थे. एंड व्हेन रिटर्न स्टार्ट्स तो रिटर्न का एक आयोटा ऑफ दैट रिटर्न, बिलीव मी, आयोटा ऑफ दैट रिटर्न वो हम लोगों को दे देते थे एंड वी वर फीलिंग क्वाइट हैप्पी. यस, अभी मैं पेंशन वाला इस पे आ गया हूं एंड आई एम गेटिंग पेंशन. अब देखिए ये बंद हो गया है. गवर्नमेंट जो काम मेरे पैसे, मेरे को, यू टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, who was the owner of this money, to who this money was belonging to? Us. It was your money, it was my money, it was the employees money. उस पैसे को गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत रोका, उसको इन्वेस्ट किया so that government can give you a secured financial future. अब गवर्नमेंट ने वो नहीं किया. जो काम एक दूसरी एजेंसी गवर्नमेंट मेरे लिए मेरे पैसे से कर रही है, व्हाई कांट आई डू दैट? और एक मजे की बात आप और सोचिए. देखिए पैसा कमाना, आई टेल यू, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. मगर पैसा कमाना इट इज मोर अ स्किल देन सिंपली अ हार्ड वर्क. अब उस पैसे को अगर मैं खुद बचा करके, और इफ आई कैन इन्वेस्ट इन दैट मनी सो दैट इन फ्यूचर पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड अदर थिंग्स दैट विल डेफिनेटली फेवर मी टू ग्रो दिस मनी. और देखिए पेंशन के बाद में सपोज आई एम गेटिंग पेंशन, तो actually I am not getting, but suppose I am getting pension throughout my life, मेरे बाद मेरा स्पाउस या स्पाउस के पहले मैं, whosoever lives last, so तब तक पेंशन मिलती थी. What about that? Both of us, they passed away. Both of us are not there. Where my original money has gone? वही काम अगर मैं अपने लिए करता हूं, वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं अपने लिए करता, उसका एक रिटर्न छोटा सा हिस्सा which I was getting in the form of pension that was good enough to keep me and my family happy, वो काम हम खुद हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते? और मेरे बाद that will एक कितना बड़ा कॉर्पस उस पैसे का बन जाएगा, you just imagine. तो initially we work for money, believe me, later on money works for us. तो एक हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क हमको ये भी सीखना चाहिए. I work for money, now it is money's turn, how money can work for us. Initially we say, money says, you save me today, I will save you tomorrow. Yes, Dr. Rekha, am I correct? You save me today, I'll save you tomorrow. What it mean? तो मनी के लिए everything. तो the objective of savings, the road to build asset, this starts from savings, and the objective of the savings is safety and liquidity. But the point is, only savings is not enough. Only savings is not enough. Savings, these are idle. This is idle. This gives only safety and liquidity. But yes, we need savings for our rainy day. But this is important what we do with our savings, so that later on when we put our savings into productive channels,
उसको हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वी आर वांटिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिटर्न्स, एंड आई do believe in post-tax returns. And when we talk about returns, the risk element is always there. So risk and reward, ये भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे. What is risk and what is reward? What is the relationship? So now I start with what we need to understand at this college level. What are our needs? What are our wantings? Why don't our wantings are not satisfied due to financial wants की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं हो पाती? Now I have a PowerPoint, so we will start it. What are our needs? What is wants? So general, basic, conceptual power of compounding, how it works. Then we will take one by one. So I'm taking this presenter's view PowerPoint. Dr. Rekha, can I attach my PowerPoint? Yes. It's Okay. here. Share. You can share your screen, sir. Okay. 1 minute. Is it visible? Yes, it is visible, sir. Okay. So we started, we all have our needs. Two things are there. Our needs, basic needs, food and clothing. और ये देखिए, ये needs सभी की पूरी हो जाती हैं. We need food, we need clothes, we need shelter, some medical emergencies. तो देखिए, food and clothes needs तो, मेरे को नहीं लगता है किसी की पूरी नहीं होती होंगी, सबकी पूरी हो जाती हैं. as far as shelter is concerned, छोटा बड़ा किसी के पास कुछ नहीं है तो नीली छतरी वाला आकाश भी होता है, सोते सब लोग हैं. फूड के लिए भी कहते हैं कि इंसान भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं है. तो खाने से किसी को मरते हुए नहीं देखा गया, ज्यादा खाते हुए मरते तो बहुत लोगों को हमने देखा होगा. तो ये नीड्स तो हमारी पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद वी हैव सर्टेन वांट्स, सम गैजेट्स, holidays, exotic holidays, buying some expensive things, go for buying a car, some luxury buyings are there. तो ये वाली चीजें मुझे लगता है कि कब सभी लोगों की पूरी नहीं होती है. Can we always fulfill our wants? सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं कभी? Yes, come on. No, sir. No, sir. this is the No, sir. reason. I just wanted to know what is the basic reason behind that कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है. So, क्योंकि एक के बाद दूसरी आती जाती है. हम एक चीज देखते हैं, हम आधा रास्ता तय करते हैं तो आगे का रास्ता और दिखता है, तो इसलिए. Yes. और ये तो एक अच्छी चीज है, ये तो अपने को मोटिवेट करती है. पर my question is, what is the basic cause behind that? इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण है? Sir, because we are not satisfied with what we are getting, and again we are trying to find the next thing what we want. Okay, this is good. But the basic point is we are still missing the basic point. Social status. Social status, we are still missing the important point. Because we are happy. Unlimited wants. So we didn't have enough money. Yes. यानी the basic foremost important thing is you go to buy एक मोबाइल आपको लेना है, you want this Apple, लेकिन मान लीजिए your pocket is not allowing you, तो we have to सेटल कहीं ना कहीं कम से करना पड़ता है. एंड द बेसिक रीजन, मैं सभी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा, बट बेसिक चीजें अगर अपन मॉनेटरी टर्म्स में, बिकॉज वी आर इन अ फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोस्टली फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट. तो उसके पीछे आई थिंक मनी और फाइनेंस इज द बेसिक रीजन. और कहते हैं ना, बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई है कभी इच्छाएं पूरी, बड़े बड़े नवाबों की भी पूरी नहीं हुई है, और गरीबों की और फकीरों की भी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती हैं. सबकी नीड्स तो पूरी होती हैं, बट वांट्स किसी की पूरी नहीं होती. सो उसके लिए अपने को we need to understand certain financial concepts. What is income? You all are aware about it, what we earn. Then certain expenses are there. Income minus expenses is equal to savings. There is no rocket science, no intelligence is required. If my income is 100 rupees, my expenses are 90 rupees, so 10 rupees my saving. If I am even mentally insane, even then 10 rupee would be in my savings, right? But we need a smart way. केवल हार्ड वर्क से आजकल काम नहीं चलता है. हार्ड वर्क, gone are the days only hard work is required. Yes, hard work is required.
हार्ड वर्क के साथ साथ, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द हार्ड वर्क इनटू स्मार्ट वर्क, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाए. तो वी नीड टू टेलर मेड इट. इनकम, माय इनकम इज 100 rupees, आई वांट टू गेट सेविंग्स ऑफ ₹10. इनकम माइनस सेविंग्स, व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट दैट शुड बी अवेलेबल फॉर माय एक्सपेंडिचर. कान को थोड़ा सा वैसे ही पकड़ा है. तो इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस इज अवर सेविंग्स. बट द पॉइंट इज, सेविंग्स जो अपन करते हैं, दैट इज गिविंग अस some security and of course liquidity. लेकिन उसके बाद savings is eaten over by inflation. It is eaten over by inflation, or inflation rate, you are aware about it, is somewhere around 7%. तो यानी एक बड़ा स्मार्ट तरीके से हमारे पैसे को ये खाती चली जाती है like a दीमक, और हमको पता भी नहीं लगता. And it is, I mean, इसके लिए तो क्या कहा जाए, it eats into our money, it is an invisible evil, it is a devil, it is like a tax without any legislation. Tax तो जो income tax के ऊपर देना पड़ता है, the more tax we are giving, it is implied the more we are earning. But this inflation, this is like a tax without a. Important thing is, savings is to be invested so that it can work for us. जब अपन savings को investment में डालते हैं, तो then we expect certain kinds of return from our investment. और investment से जब return की बात करते हैं, तो risk element is always there. So we need to understand the fundamental of this. So for that, investment helps us achieving our goals. यहाँ पे goals से मेरा मतलब I mean my concerns about financial goals. When we goals अपन बनाए, what are our short term goals, what are our long term goals, है? अब उसके अंदर there are certain things to ponder about, and our goals, उसके पहले we need to have certain financial dreams, and dreams are not those which we see while we are in a sleeping mode. Dreams, whether it is financial or whether it is lifetime, that should not allow us, वो ऐसे होने चाहिए कि they don't allow us to sleep. So तो हमारा जो एक financial goal है, that should be very smart. यानी as you all are aware, I mean as for specific, M stands for measurable, then achievable, then realistic and timeliness. उसके आगे एक चीज अपन टेलर और कर दें, it should be properly documented of course. उसको लिख लीजिए और आगे लगा लीजिए so that आपको हमेशा motivation करता रहे. तो इन्फ्लेशन अपन ने बताया, एक इन्फ्लेशन अगर 8% की रेट से इन्फ्लेशन होता है, तो इन अ पीरियड ऑफ 10 years योर मनी गेट्स डेप्रिसिएटेड एंड द रियल वैल्यू ऑफ मनी इज ओनली 46%. ओनली 46%. और बड़ा स्मार्ट तरीके से, तो यानी हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम इतना तो होना चाहिए दैट शुड बीट द इन्फ्लेशन और द टैक्स रेट व्हिच वी आर पेइंग ऑन द एडिशनल इनकम व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट. So inflation, it's to be well taken care of when we are talking about investment. So it's a devil like. So when we are talking about return, risk is always there. Risk can not be eliminated. और ये जो डेप्रिसिएट हमारा पैसा होता है, इवोपरेट हो जाता है, दैट इज नॉट विजिबल, बिल्कुल भी दिखता नहीं है. तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देखिए अभी प्रेजेंटली, अभी अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो यू शुड बी एट नो रिस्क जोन. अभी आपको यू नीड टू पुट योर मनी इनटू योर सेविंग्स अकाउंट, योर एफडी अकाउंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीपीएफ, लाइक दैट. उसके बाद और पैसा आता है, बैंक डिपॉजिट में जाते हैं सेविंग से निकल के. इफ यू गेट मोर मनी देन सम अदर इन्वेस्टमेंट. फिर आपका रिस्क एपिटाइजर जैसे जैसे बढ़ता जाता है. मनी हैज टू वैल्यूज. वन इज टाइम वैल्यू, वी कॉल इट इंटरेस्ट. तो ग्रेजुअली हमारा पैसा बढ़ता है इफ वी पुट दैट मनी इनटू इन्वेस्टमेंट. और दूसरा एक मनी का वैल्यू होता है, वी कॉल इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. तो देखिए जब आपके पास थोड़ा पैसा आता है, वी कीप इट विद अस ओनली. उसके बाद ज्यादा आता है तो वी पुट इनटू सेविंग्स अकाउंट, और सेविंग्स अकाउंट के बाद और पैसा बढ़ता है तो देन दैट सेविंग्स इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड, या उसका कुछ हिस्सा निकाल के फिक्स, देन पीपीएफ एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, मनी मार्केट, कमोडिटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स. वहां पे रिस्क एलिमेंट, लेकिन रिवॉर्ड भी आपके पास ज्यादा चला जाता है. तो ये वाली चीज भी अपन को बहुत ध्यान रखनी चाहिए.
आपको, you will never find any rich person who says I never took any risk या मैंने कोई पैसा खोया नहीं हो. लेकिन you will find lots and lots of poor people, वो आपको कहेंगे कि मैंने 1 रुपया भी नहीं खोया है. But unfortunate part is उन्होंने कभी कमाया भी नहीं है. रिस्क से डरने के, yes we need to take no risk zone, then we need to take moderate risk, very calculated risk. उसके बाद risk appetizer जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे the more avenues, gateway to earn money opens, और उसको एक opportunity के साथ action plan भी अपने को लेना होता है. सबसे रिस्क से डरने की जगह रिस्क को we need to understand how to manage the risk. देखिए, डर, लाइफ में डर, जब तक पैसा नहीं आता बच्चों, जब तक पैसा नहीं आने का डर रहता है, और जब पैसा आ जाता है तो वो खोने का डर हमारे को रहता है. वो चालान आ जाए, कम नहीं हो जाए, कुछ चोरी नहीं हो जाए, वो डर अपने को रहता है. और मेरे को लगता है सबसे बड़ा रिस्क अगर लाइफ में कोई है, मैं टॉकिंग इन फाइनेंशियल टर्म, सबसे बड़ा रिस्क तो इट इज नॉट टेकिंग द रिस्क. देखिए, वी ऑल हैव टू डाई वन डे. This is for sure. My death is fully secure. There is no insecurity to my death. लेकिन मुझे बताइए, and this is applicable to all human beings, all creatures on this universe even. But you tell me, मरना सबको है. मरने के डर से आज तक किसी ने जीना छोड़ा है? मरने के डर से हम जीना छोड़ सकते हैं? नहीं. तो एक रिस्क लेने को, रिस्क को how to manage the risk rather than taking the risk. अभी कुछ स्टॉक मार्केट, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो एक इसमें सिक्योरिटी मार्केट. देखिए, जैसे जैसे आपको अपन आगे आते जाते हैं, जैसे जैसे आपके पास नए एवेन्यूज खुलते चले जाते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट. दिस इज 2 kinds of security market. One is primary market, where new securities are listed. I mean, new IPOs are there, initial public offerings. और अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे पब्लिक ऑफर्स आए थे और लोगों को इसमें मिला भी था. इसमें रिलेटिवली रिस्क कम होती है. देखिए, जब रिटर्न की बात करते हैं तो रिस्क कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड अनलेस एंड अंटिल यू दैट. बट सम मार्केट रिस्क, दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद मार्केट रिस्क. तो लेकिन इसके अंदर रिलेटिवली रिस्क इज very low. And another one is secondary market, where trading of the securities takes place, where buying and selling of shares are made, ownership gets transferred. It provides liquidity to the market, demand and supply that decides the market price. Ownership gets changed. देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर को भी अपने को समझ लेना चाहिए. कहते हैं बिजनेस, आपको अगर ज्यादा पैसा बिजनेस में पार्टनरशिप ले लो. अब मुझे कौन सा तो नया बिजनेस मिलेगा और कौन मुझे पार्टनरशिप देगा. ये कॉर्पोरेट कल्चर. इफ आई एम बाइंग सम शेयर्स ऑफ द कंपनी, आई एम नॉट ओनली सिंपली बाइंग शेयर्स, नॉट सिंपली इन्वेस्टमेंट, आई एम गेटिंग proportionate ownership भी मेरे को मिल रही है. And it is a place, this market is a place where wealth is created, buying and selling of securities are made. Corporate culture को समझिए. देखिए, कॉर्पोरेट में और अपने में थोड़ा सा मैं फर्क बताऊं. कॉर्पोरेट कल्चर ने, देखिए, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट की सोच का फर्क आपको बताता हूं. और प्रैक्टिकली देखिए, कॉर्पोरेट में टैक्स का रेट कम है. कॉर्पोरेट पीपल, कॉर्पोरेट में पहले यू अर्न मनी, उसके बाद खर्चा कर दीजिए जी भर के. whatever is left after spending, then you are liable to pay on that money which is left after spending. And what is with you and me? We earn first, pay tax first, बल्कि वो तो कट के ही आता है हमारे हाथ में. What is left after? This is, we have to manage it. So I think investment is a wonderful business, provided इसको wonderful तरीके से अपन करें. तो इस corporate concept को भी अपने को समझना चाहिए. Participants of the securities market, you all are aware about, certain issuers are there, government may issue its securities, certain corporates, certain companies, corporations, they issue. Some intermediary, जिसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, so that बाद में अपन important चीजों पे concentrate करें. Intermediaries, banks are there, registrar to the issue, credit rating agencies, CRISIL like that, and some brokers, custodians.
NSDL and all, and sub-brokers, they are intermediaries, and infrastructure, they are stock exchanges and depositories. इनके पास सारा infrastructure है, all are computerized, you all are aware about it, and certain investors like you and me, individuals, mutual funds, capitalists, venture capitalists, and private equity funds, and domestic institutional investors, and financial institutional investors. So these are there. So there are certain mantras of investing. Start it in early because compounding pays a lot. मैं आपको compounding का एक example देता हूँ. उसके पहले compounding, when your money grows exponentially, initially it grow at a relatively little speed से बढ़ता है. उसके बाद में इतना spectacular growth इसमें आता है. मैं तो उस growth को count भी नहीं कर सकता being a chartered accountant. उसके पहले I'll tell you one thing. This is Rule 72. Are you aware about Rule 72? No, sir. Yes, I'll tell you what is Rule 72. Rule 72, it's management में बताते हैं, यानी this shows if we divide 72 by rate of return which is prevailing in the market. So whatever is the outcome, it means this is the time period during which our money will get double. Say for example, if the rate of return is 12% per annum, तो 72 में 12 से divide करें तो it comes 6. It means अगर 12% की रेट से इस पैसे को कंपाउंड किया जाए तो it will take 6 years to get my money double. या अपनी भाषा में बात करें, अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न है तो 6 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा. देखिए पुराने लोगों का आपको ज्यादातर रिटायरमेंट का पैसा एफडीज में मिलेगा. उसके पीछे रीजन, अर्लियर बैंक्स वर गिविंग 18% और 15% तो बहुत देर तक उन्होंने रिटर्न दिया है. नवडेज आजकल बैंक्स के रेट आप 1/3 पे आ गए हैं करीब करीब. तो ओनली फिक्स्ड इनकम से हमारा काम चलने वाला नहीं है. 1/3 पेंशनर्स का जो एफडी से रिटर्न आया करता था पहले और उसकी कंपाउंडिंग वो लोग किया करते थे, दिस इज रिड्यूस टू 1/3. लेकिन उसके साथ में कहते हैं ना चैलेंजेस आते हैं, तो challenges never comes alone. They come along with certain opportunities, and every opportunity which we are aspiring for, that is to be followed by an action. अब देखिए nobody is poor. आने वाली पीढ़ी गरीब नहीं हो सकती. मैं आपको compounding का मजा बताता हूँ. As I told you a little bit earlier, it's more an art, it's more a skill than simply hard work. यानी 6 years अगर आपको 1 रुपया सैकड़ा जिसको बोलते हैं 12% per annum, it means 6 years में you are getting your money double. और अगर 15% का आपको कोई एक स्किल डेवलप हो जाती है कि yes I can earn 15% per annum, 100 रुपया सैकड़ा जिसको अपन बोलते हैं, तो it means it will take a little less than 5 years to get your money double. तो यानी 15% का एक एग्जांपल लेता हूं तो that will easily एक ग्रेस्प अच्छी तरह से हो जाएगा क्योंकि वो 5 और मल्टीपल्स 5 में आएंगे. तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज सिंपली टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. यानी अब देखिए कोई गरीब कैसे हो सकता है? इफ वी born in poor, we cannot choose our parents, we cannot choose our family, we cannot choose our looks even. But if we die poor, who is to be blamed for? We alone. अब देखिए 5 साल में पैसा डबल हुआ. इनिशियल लेवल पे थोड़ा धीरे दिखेगा, लेकिन उसके बाद कितना एक्सपोनेंशियल, कितना स्पेक्टाकुलर ग्रोथ आता है. इट इज आई ओपनिंग, अनबिलीवेबल, बट इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी. 50 साल में पैसा 1000 टाइम्स होता है. यू टेल मी हाउ माय नेक्स्ट जनरेशन कैन बी पुअर. देखिए 5 साल में पैसा डबल हुआ, 10 में 4 गुना हो गया. 5 में डबल हुआ, 10 में 4 गुना हो गया. व्हाट अबाउट आफ्टर 15 years? Yes, come on. So can you repeat, please? Yes, 5 साल में पैसा, in 5 years I got my money double. If I'm getting 15% per annum return and I'm talking about compounding, it takes 5 years to get my money double. 10 साल में कितना हो जाएगा? 4 times? Yes, sir. What about 4 times. 15 years? 15 years? 8 times. 15 साल में 8 गुना हो जाएगा, 20 साल में 16 गुना हो जाएगा. नाउ अब इसकी स्पीड आप देखिए, 5 में डबल हुआ, 10 में 4 टाइम्स हो गया, 15 में 8 टाइम्स हो गया, 20 में 16 टाइम्स हो गया, 25 साल में 32 टाइम्स, 30 साल में 64 टाइम्स. 64.
35 साल में 128 टाइम्स, 40 years में 250 टाइम्स। तो यानी इन 40 years योर मनी हैज ग्रोन टू 250 टाइम्स। रफली इसको 250 ले लें। 40 साल के आदमी को अपनी बचत तोड़ने की जरूरत नहीं होती है नॉर्मली, और इसको 5 साल अगर और छोड़ दें, 5 साल के बाद में ये 250 गुना कितना हो जाएगा, इट विल टर्न टू 500 टाइम्स, और अगले 5 साल में इट विल बिकम 1000 टाइम्स। यानी 50 साल पहले मेरे लिए अगर मेरे पेरेंट्स ने 1 लाख रुपीस कहीं पे एफडी में इन्वेस्ट किए होते विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, वो आज की तारीख में इट वुड हैव ग्रोन टू 10 करोड़ रुपीस। कौन सी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, कौन सी महंगाई बढ़ गई है। यस, यू मे आस्क वन थिंग, सर 50 years बैक 1000 रुपी, 1 लाख रुपी वाज अ ह्यूज अमाउंट। 1 रुपया उन्होंने लगाया होता तो दिस कुड हैव इंक्रीज टू 1000 रुपीज, एंड आने वाली पीढ़ी को अगर इसमें से कुछ हिस्सा मिलता है तो 1000, अभी सेम पीढ़ी इज अलाइव, वो जनरेशन अभी जिंदा है, उसके बाद ये 1000 टाइम का 2000 टाइम्स, 4000 टाइम्स, 8000 टाइम्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज द सीक्रेट। ये टाटा बिरला की, अंबानी की जो हम बात करते हैं, दे नॉट ओनली वर्क फॉर मनी, their money, their investment, other resources, people like you and me, they all work for them. आपको और मेरे को पगार मिलती है, we get salary, we get consultancy, but they are the owners. तो हमसे कम पढ़े लिखे लोग अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को काम पर रखते हैं। This is the secret of their richness. God has given 24 hours to work. उसमें भी हम 8-9 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। सबको इतना टाइम मिला है, ये तो गॉड के ऊपर ब्लेम ही नहीं हो सकता है। यहां तो पार्शियलिटी का खेल नहीं है। लेकिन रिच पीपुल, दे नो हाउ टू हायर द टाइम ऑफ अदर पीपुल। आपको और मेरे को वो एम्प्लॉयमेंट में लेते हैं। उन्होंने मान लीजिए 10 जनों को हमको लिया, एंड वी आर वर्किंग 10 hours पर डे, इट मींस दे हैव हायर्ड 100 वर्किंग आवर्स, वी आर वर्किंग फॉर देम। दिस इज द सीक्रेट। हम उनके लिए भी काम करते हैं, ज्यादा काम हम उनके लिए करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, वी आर गेटिंग। और 10% की सैलरी हमको बढ़ जाती है हर साल, वी फील हैप्पी। 10% बढ़ गया, अरे 7% इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी। 10% जो सैलरी आपकी बढ़ रही है, उस पे 30% यू आर लाइकली टू पे टैक्स इफ यू आर ऑन द हाईएस्ट ब्रैकेट। तो ये कई बार तो नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है हमारी। सेविंग्स अकाउंट लगने लगता है कि शेविंग अकाउंट हो गया है, बट इट इज नॉट, नोटिस में नहीं आ पाता, वी फील हैप्पी। इन्फ्लेशन 10% सैलरी बढ़ गई और 7% अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रियल वैल्यू मेरे पास तो 3% ही तो बढ़ा मेरा, और उसके बाद भी दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स एंड अदर थिंग्स। और जो तो महंगाई को तो हमको इससे कंसीडर करना ही पड़ेगा। सो यानी दिस इज द सीक्रेट ऑफ रिच पीपल। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाई, डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। देखिए, कुछ टाइम, इट टेक्स टाइम। मुर्गी का जब अंडा होता है तो मुर्गी उसको सेकती है, उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है, तो उसको टाइम, इट टेक्स 9 months टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। इवन मदर हैज टू वेट फॉर 9 months। तो वही इन्वेस्टमेंट के साथ भी होता है, और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए। कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ में रिस्क ज्यादा होती है, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। रिस्क जो आती है, कंजर्वेटिव रिस्क, मॉडरेटली कंजर्वेटिव, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली एग्रेसिव एंड एग्रेसिव, ये चीजें टाइम के अकॉर्डिंगली एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिस्क एपिटाइजर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और ये दीज आर तो सिंपल थिंग्स। एक ऑथोराइज्ड ब्रोकर्स के थ्रू हमारे को काम करना चाहिए। कभी भी एक तो फॉल्स स्प्रे ना करें, रूमर्स वगैरह पे ना जाएं। जो सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उन्हीं से अपन काम करें। आजकल एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यू नो, तो उसमें अपने को थोड़ा सा, अब वी शुड नो अवर राइट्स के साथ साथ वी शुड आल्सो नो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज, कभी कैश में हमको डील नहीं करना चाहिए ऑलवेज। आजकल तो खैर इन मार्केट में तो कैश में डील होता भी नहीं है। इवन आई हैव 2 अकाउंट्स, मेरे खुद के 2 अकाउंट हैं मान लीजिए, और मैं ब्रोकर को किसी भी अकाउंट का चेक नहीं दे सकता। आई हैव टू मेंशन, केवाईसी नॉर्म्स में आता है कि विच बैंक आई वांट टू ऑपरेट फॉर दिस पर्पस। तो अगर मेरे पास पीएनबी का अकाउंट है और आईसीआईसीआई में मेरे पास बैलेंस है, तो ब्रोकर का वो को अगर मैं चेक देता हूं तो वो एक्सेप्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, सिस्टम विल रिजेक्ट इट। तो कभी भी ये डब्बा ट्रेडिंग, ये अनऑफिशियल ट्रेडिंग, इनसे अपने को दूर रखना चाहिए। अपने फियर एंड ग्रीड दोनों को काबू में रखना चाहिए। कई बार अनऑथोराइज्ड ब्रोकर से हम काम कर बैठते हैं, वो हमारे को एक लेवरेज दे देते हैं, कैश में डीलिंग करने की वो दे देते हैं, एंड यू ट्रेड
वो उसमें सिक्योरिटी वगैरह भी हमसे, मार्जिन वगैरह भी कम ले लेते हैं, बट दैट वो एक र्यूमर और ये एक ग्रीड से, क्योंकि देखिए डर से तो काम होता नहीं कभी, और ग्रीड आपको कभी बाहर नहीं आने देती, एंड ग्रीडी का जो दैट इज बैलीज बॉटमलेस, तो ग्रीड से अपने को बचना चाहिए। कभी भी फॉल्स प्रे भी अपन नहीं करनी चाहिए कभी भी, और अनऑथोराइज्ड लोगों से बिल्कुल अपने को बचना चाहिए। एनालिसिस एंड इन्वेस्ट, अभी मैं नहीं कह रहा हूं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, व्हाट आर ऑडिटर्स मार्क्स, इनके नोट्स क्या होते हैं, और एनालिसिस करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इफ इट इज अ स्किल, इफ वी डेवलप इट, उसके बाद तो एक लाइफ लॉन्ग इट बिकम्स an earning machine. Initial, you convert yourself into earning machine, and that will automatically transform yourself to earning machine. पहले learning, then earning. Always work for learning. Earning तो it is a byproduct. आपने रेगुलर सेव किया है, हार्ड वर्क किया है, यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, केवल अपॉर्चुनिटी के वेट से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्ट अपॉन इट। Every opportunity is to be followed by an action. बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए, and thanks to technology, you people are fortunate enough. You are living in a very techno-savvy environment. तो वहां तो आजकल कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कहां से बैठ के कर रहे हैं। तो एक हमारा मल्टीटास्किंग भी बहुत हो गया है, और हम लोगों की एफिशिएंसी भी काफी बढ़ गई है। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करें, डोंट गो फॉर टिप्स। लोगों को मैंने देखा है, अरे व्हाट इज द टिप, किसी से मिले, कौन सी टिप है, अरे टिप इज फॉर रेस्टोरेंट, टिप तो रेस्टोरेंट में मिलता है, यहाँ थोड़ा टिप मिलता है। यहाँ तो एक बार यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ओनली द मार्केट। बड़ा कभी कभी अनफॉर्चुनेट लगता है, वेयर हाईली टैलेंटेड पीपल दे आर गोइंग टू आस्क वेरी लो कैटेगरी ऑफ पीपल, मार्केट क्या लगता है। एक ऑपरेटर जो बैठा हुआ है, इवन बूट पॉलिश करने वाला जो बैठा हुआ है, इफ मार्केट इज ऑन, बहुत बूम पे चलता है, तो पीपल आस्क फ्रॉम, जिनको समझ नहीं है उनसे पूछते हैं कि मार्केट क्या लगता है। तो इन चीजों से अपने को बचें, एनालिसिस करें, दिस इज योर बिगेस्ट वेल्थ, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर ब्रेन। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली। मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी भी जैसे कहा था कि रिस्क वाला फैक्टर हम बात कर रहे थे, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दिस वी कैन नॉट अवॉइड इट। एंड बिजनेस का दिस इज द प्रिंसिपल, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द प्रॉफिट। इसको वी नीड टू टेलर मेड, वी नीड टू टेक calculated risk. Calculated risk means how much is the reward and how much risk I am able to bear. मेरा risk bearing capacity कितना है, उसके accordingly, and what is the return I am getting. Initial level के ऊपर no risk John, no risk John. उसके बाद धीरे धीरे when money started working for you, तो एक risk appetizer और एक avenues आपको बढ़ जाती हैं। तो I think investment is a wonderful business. It's really a wonderful business and it works for all, provided इसके norms वो अपन अच्छी तरह करें। Try to be the best version of yourself, लेकिन उसका उसका एक यूजर मैनुअल भी अपने को पढ़ना और समझना आना चाहिए कि ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और कभी अगर अपन अटक जाते हैं बेस्ट वर्जन बनने में, तो उसके यूजर मैनुअल मींस व्हाटएवर स्ट्रेटजीज वर देयर, उसको भी अपने को मॉनिटरिंग जरूर से करते रहना चाहिए। Read contract notes thoroughly, you all are aware about it. Be honest and aware invest. देखिए honesty दूसरों के साथ दिखाते हैं, उससे पहले honesty we need to be honest with ourselves. What I want from myself, what I want my money to do for me, what I want my money to do for me. ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। खुद से आप ईमानदार हैं, आप दूसरों से ईमानदार कभी हो ही नहीं सकते जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं है। तो ईमानदारी से अपने को सब चीजें एनालिसिस और एक अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ भी ईगो नहीं होता है। ट्राई टू गेट सर्टेन थिंग्स, रीडिंग हैबिट्स पढ़िए। जितने भी वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टमेंट के गुरु हैं उनको, यू गो टू वॉरेन बफेट, आज की तारीख में भी वो 8-8 घंटे पढ़ते हैं। यू गो टू बिल गेट्स एक हफ्ते के अंदर एक किताब आज भी पढ़ते हैं। This is the secret of their success. This is the secret of making money. एक मशीन बना रखी है उन्होंने, मशीन पैसा छापने की।
दिस इज देयर। आप देखिए इनके इंटरव्यूज कभी आप देखिए, यू विल फाइंड इनको रीडिंग की कितनी है, इनको अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और एक देख लीजिए जिन्होंने पैसे को पढ़ना सीख लिया, पैसे को वैसे भी शब्दों से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ गेम ऑफ जीरोस। जीरोस की वैल्यू जब लेफ्ट में होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज लाइक अ जीरो, एंड जीरो, फॉर्चुनेटली जीरो वाज इन्वेंटेड बाय इंडिया। और जीरो को वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको कहा था कि इट इज अ स्किल। एक स्किल डेवलप करिए, जीरो को लेफ्ट से उठा के राइट पे कीजिए। 0 0 1 इज ऑलवेज 1, 1 0 इज 10, एक जीरो और लगाएंगे तो 100, then 1000, then 10,000 and so on so forth. This is the beauty of this game. ये मल्टीप्लाई होता है एक स्टेज के ऊपर जाकर के, एंड मल्टीप्लिकेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इट वर्क्स फॉर ऑल। इट नीड्स lot of discipline, dedication, hard working and good habits. Habits जो होती हैं आपकी सेविंग्स, अभी गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, गवर्नमेंट अब आपको पेंशन नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट आपको सबको और मेरे को जॉब भी नहीं दे सकती है। इट नेवर मीन कि हमारे लिए कोई एवेन्यूज कम हो जाएंगे। नो, इट इज नॉट देयर। बहुत सारे एवेन्यूज हमारे पास में रहेंगे, बहुत रहेंगे हमारे पास। प्लिथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर प्रोवाइडेड। हम इन सब चीजों को समझ लें। ये काम जो दूसरे मेरे लिए, व्हाई वी ऑलवेज थिंक अदर पर्सन इज मोर स्मार्टर देन मी। उसको तो अपन किसी पैसे वाले को, एवरीबडी वांट्स टू आई मीन बी अ रिच पर्सन, एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज एवरीबडी वांट्स बट वेरी फ्यू पीपल दे रियली वर्क टू बिकम अ रिच पर्सन। तो रिच पर्सन की तरह के काम तो करें अपन। केवल खर्चे की बात करें कि वो तो रिच पर्सन है, खर्चे ज्यादा करता है। रिच पर्सन में आपको बताऊं, हिस्ट्री शोज, रिसर्च शोज, ये जो पैसे वाले, सो कॉल्ड पैसे वाले लोग, ये लग्जरी आइटम्स के ऊपर पैसा आपसे और मेरे से बाद में खर्च करते हैं। दिस इज द, लेकिन करते हैं तो वो बहुत करते हैं, लेकिन पहले वो इनकम के सोर्स डेवलप करते हैं, उसके बाद वो खर्चा करते हैं। तो देन वंस यू created a source of income, that will, I mean, your expenditures will be well taken care of by your income. Active income or passive income. Passive income, we don't work but we get money. Active income, we work, we get money. Passive income को अपने को डेवलप जरूर करना चाहिए, और पैसिव इनकम एक एज के बाद हमारा पैसिव इनकम एक्टिव इनकम से ज्यादा होना चाहिए। राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, आपको यूनिक क्लाइंट कोड चाहिए, आपको केवाईसी नॉर्म्स वगैरह, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाए, आर्बिट्रेशन में चले जाए, चेक से अपन दे, पैसा नहीं दे तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, उन सब के बारे में these all are, I mean, you all are aware, इन सब चीजों की जानकारी तो अपने को होनी चाहिए। तो जागरूक बने अपन, सोते हुए ना बने। I mean, कई बार होता है डैडी नोज एवरीथिंग, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं, अपने को मालूम होना चाहिए, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। इट्स नॉट रिक्वायर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज एंड कॉम्प्लिकेटेड अंडरस्टैंडिंग। इट इज क्वाइट सिंपल। पैसा कमाने में ज्यादा एक तो बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, दिमाग सेट होने की ज्यादा जरूरत है। कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ कमर्शियल सेंस। मैं आपको एक वॉरेन बफेट का एग्जांपल दूंगा। ये 2-3 स्लाइड्स मेरी हैं, इनको मैं एक बार पूरा कर देता हूं। राइट के साथ साथ यू वर टोल्ड अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी एक जागरूक इंसान की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। सो एनएससी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट गोल्स जो आपके आते थे, ये प्रिजर्व योर कैपिटल, जनरेट योर इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं अपने, वो जनरली हेजिंग के लिए बने हैं, लेकिन लोग बाग इसको एक ट्रेडिंग की तरह से, एक ट्रेडिंग टूल की तरह से यूज करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कई बार कि इस मार्केट के अंदर भी ओनली 5 to 10% पीपल दे आर रियली अर्नर्स, ऑन दोज आर इन्वेस्टर्स। कई इन्वेस्टर्स दे टर्न टू बिकम एक स्पेक्यूलेटर में बन जाते हैं या ट्रेडर बन जाते हैं। वो तो ट्रेडर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, स्पेक्यूलेटर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अपनी एक पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, वेदर आई वांट टू बी अ ट्रेडर और आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर। आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है। ट्रेडिंग के देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, उनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको और इन्वेस्टर को कभी एक साथ
नहीं जोड़ सकते। और सिंगल एक्सचेंज है ये, वेयर मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, इन सब की ट्रेडिंग आपके पास होती है। दिस इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, और इनका जो एक सेटलमेंट सिस्टम है वेरी डिसिप्लिन, वेरी रिगोरियस, एक जो आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स वेरी रिगोरियस सिंस द इंसेप्शन 1992 टिल टुडे, विदाउट एनी फेल इनके सारे सेटलमेंट चलते आ रहे हैं, थैंक्स टू देयर मैनेजमेंट एंड देयर सिस्टम। वो कहते हैं ना, यू वर्क फॉर सिस्टम फर्स्ट, लेटर ऑन सिस्टम विल work for you. First you change your vision, then your vision will change you accordingly. Financial में आपसे बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल विजन अपना चेंज करें, what you want your finance to work for you, this is very important. तो NSE कुछ इन्वेस्टर सर्विस का है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन के इनके कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, जस्ट टू, वैसे आप NSE की साइट के ऊपर यू में जस्ट गो थ्रू इट। इन्वेस्टर्स का एक एजुकेशन प्रोग्राम्स काफी सारे चलते हैं, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स का रिड्रेसल, वेरी रिगोरियस कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम इज देयर, सम आर्बिट्रेशन में वो आपकी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ सर्टेन डिफॉल्ट्स, और डिफॉल्टिंग कमिटी जो बनी हुई है इन केस ऑफ डिफॉल्ट और डिमाइस ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर, तो उसमें भी अगर अपन ठीक से काम करते हैं तो दे प्रोटेक्ट योर फंड्स। एक फाइनेंशियल लिटरेसी NSE के ऊपर, NSE के देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशन कोर्सेज और फाइनेंशियल मार्केट NCFM वगैरह के कोर्स है, आप इनको साइट के ऊपर कभी भी देख सकते हैं। और कुछ इन्होंने कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल्स के लिए देयर आर सर्टेन कोर्सेज, कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। NSE दे हैव टाइड अप विद सर्टेन यूनिवर्सिटीज, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वगैरह इनके चलते हैं, और इसके लिए यू नीड टू गो फॉर दिस वेबसाइट के ऊपर अपन इसको कर सकते हैं। सो दिस वाज, ये NSE का ये लोगो भी है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सो दिस इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली, दिस इज नॉट अ कोई एकेडमिक जिसको अपन कहें उस तरह का नहीं, इट इज जस्ट टू इम्पार्ट द अवेयरनेस। और मैं आपको बताऊं, पैसे कमाने के लिए एक अवेयरनेस की, एक अवेयर पर्सन की ज्यादा जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स मोर डिसिप्लिन देन एनी कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल्स। वो ठीक है अपनी जगह पे होती है, धीरे धीरे इट ग्रोज, लेकिन आपको अगर कोई चीज की जानकारी, देखिए एक्सपर्ट एडवाइस तो आपको मिल जाती है। आज इफ आई वांट टू कीप माई सेल्फ फिट, उसके लिए आई डोंट नीड टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीजें मुझे आनी चाहिए, what to take, what not to take, what to eat, what not to eat, लेकिन उसके बाद अगर कुछ एलिमेंट होती है तो मेरे को डॉक्टर्स की सर्विसेज मिल जाएंगी। तो आई नीड नॉट टू बी अ डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत हर जगह पे नहीं पड़ती है, एक्सपर्ट एडवाइसेस आर अवेलेबल। और धीरे धीरे ये स्किल है, इसके अंदर आपकी जैसे जैसे होनिंग आती जाती है वैसे वैसे वी गेट सर्टेन काइंड ऑफ एक्सीलेंस। देखिए स्किल्स में कभी भी, एज पर मी, स्किल्स आर नेवर परफेक्ट, उसमें ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। और धीरे धीरे देखिए डेरिवेटिव्स की कई स्ट्रेटेजीज लोग बनाते हैं, शेयर मार्केट की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन पहले दे वर्क ऑन द सिस्टम बनाते हैं, लेटर ऑन सिस्टम उनके लिए काम करता है। तो इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको और शेयर करता हूं। देखिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स, एक सेविंग्स इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। आदत जो है मैंने आपको बताया था वो ज्ञान और इंटेलेक्चुअल के ऊपर भारी होती है। आदत एक आपको उसका महाभारत का एक दृष्टांत मेरे को याद आता है कि आदत, देखिए ये जो पांडव थे इनकी बड़ी अच्छी आदतें थी, युधिष्ठिर की एक खराब आदत भी थी। क्या खराब आदत थी? जुआ खेलना। जुआ खेलने की उसकी एक आदत थी। तमाम अच्छाइयों के ऊपर वो चीज भारी पड़ गई और जुए में वो किसको लगा बैठा, कभी कभी होश उड़ जाते हैं सुन करके। अपनी पत्नी को दांव पे लगा बैठा, जो लाइक शी इज ए कमोडिटी, और अगर कमोडिटी उसने मान लीजिए ये गलती कर दी, ये तो माफी योग्य हो सकती है, वो तो 5 भाइयों की पत्नी थी भाई। अगर वो इसको एक कमोडिटी मानता है और अपनी प्रॉपर्टी मानता है और ओनरशिप उसके ऊपर दिखाता है, तो ही वाज नॉट द ओनर ऑफ अलोन। तो वहां पे
इसके ऊपर ये चीज भारी पड़ी। और एक चीज दुर्योधन से भी अपन सीख लेने की सलाह ले लेनी चाहिए। मैं उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन कई बार नेगेटिव चीजों से भी अपने को पॉजिटिव चीजें लेनी चाहिए। दुर्योधन इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये एक ही इज नॉट ए गुड जुआरी, वो जुआरी नहीं है, अच्छा जुआरी नहीं है, वो इनको नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी उसने युधिष्ठिर को उकसाया। किसकी सलाह पे उकसाया? ये युधिष्ठिर बगैर किसी की सलाह लिए चले गए वहां पे। ये हमेशा कृष्ण भगवान की सलाह लिया करते थे। दिस इज ओनली द इंस्टेंस, वहां पे इन्होंने उनकी राय नहीं ली। और दुर्योधन जैसा था जो था, उसने शकुनी मामा की सलाह ली, और उसके बाद में रेस्ट ऑल इज द हिस्ट्री। वी नीड टू टेक लेसन्स। उसके ऊपर अपन कोई वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, हु वाज राइट हु वाज रॉन्ग, बट वी कैन टेक सर्टेन लेसन्स। इनकम, और उसकी बात कर रहे थे, वो एक बीच में आ गया। इनकम इज व्हाट यू अर्न, सेविंग्स व्हाट यू कीप, एंड वेल्थ व्हाट यू एक्यूमुलेट। तो वेल्थ अपने को बनाना चाहिए। एक सीड जो होते हैं, वी नीड टू सो द सीड्स। सीड को अगर आपने बो दिया, दे विल डेफिनेटली फ्रुक्टिफाई। उनको थोड़ा सा संभालिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, दे विल कन्वर्ट इनटू अ ट्री। देन दे नीड नॉट टू बी प्रोटेक्टेड, दे आर केपेबल एनफ टू प्रोटेक्ट यू। आपकी नीड को वो सेटिस्फाई कर देंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू योर विशेस, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज। मोर यू लर्न, मोर यू अर्न। तो अपने आप को लर्निंग मशीन में तब्दील करिए, अर्निंग मशीन वो अपने आप हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं ना, ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन योर कैश, believe me, investment in your cash and in kind, it may crash at any time. This is all subject to market risk. But investment in your brain, this will definitely keeps you going very wealthy and very sustainability जो आती है वो इसके अंदर आती है। तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिलते हैं, अनबिलीवेबल रिटर्न। सो ऑलवेज बिकम अ लर्निंग मशीन। अमीर देखिए, पैसे से केवल नहीं बना जा सकता है, पैसे की समझ से अमीर बना जाता है। आपने बहुत पैसे वाले देखे होंगे, एक समय के बाद चले गए। वैसे भी कहते हैं लक्ष्मी जी का प्रवास बड़ा चंचल है। आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो देन शी विल रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज बहुत लोग हैं उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो ये केवल, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ थॉट अबाउट फाइनेंस, इट इज अबाउट फाइनेंशियल थॉट। तो विचार नहीं, अपन एक फाइनेंशियल विचार की बात करते हैं। गरीब कोई है नहीं, गरीबी इट इज सिंपली एक अपनी मानसिकता है। और इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको कहा था, शॉर्ट टर्म के अंदर दे एक्ट्स लाइक अ वोटिंग मशीन, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर दे बिकम अ वेइंग मशीन। तो वोटिंग मशीन शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेइंग मशीन। एक्टिव और पैसिव इनकम के लिए आपने एक पैराबल ऑफ पाइपलाइन सुना है? Dr. Rekha, may I take a few more minutes? Yes, sir, definitely, no problem. I'll tell you एक पाइपलाइन का एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी वंडरफुल। दिस इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, हम रोज देखते हैं इसको। देखिए एक बार क्या होता है, टू यंग बॉयज वर देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक। टू यंग बॉयज वर देयर। उस टाइम पे ये नल वल नहीं होते थे, लोग वक्त तालाब पे और कुएं पे पानी भरने जाते थे। तो उनका ड्यूटी लगा हुआ था, घर का काम लेडीज संभाला करती थी, उनका ड्यूटी दोनों का था, भैया आपने स्कूल कॉलेज से आओ और उसके बाद पानी वानी भर के लाओ। तो वो जाते थे तो बेचारे बहुत थक जाते थे। इट वाज वेरी टायरिंग, वेरी बोरिंग, वेरी मोनोटोनस, बड़े सारे चक्कर लगते थे। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया, और जनरली आप देखिए अच्छे आइडियाज जो होते हैं ना, दोज आर मोस्टली क्रिटिसाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उसने अपने फ्रेंड से ये चीज शेयर की कि यार एक आइडिया आया है कि अपन इस कुएं के पास में एक नल लगा देते हैं, और नल से वी अटैच, उस नल को अपन एक पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, और वो पाइपलाइन अपने घर तक चली जाएगी। तो एज एंड व्हेन जितनी क्वांटिटी में पानी चाहिएगा, वी वुड बी एबल टू गेट इट। तो ये थकेंगे भी नहीं और ये भी नहीं होगा। The other friend said, no, I am comfortable with what I am doing. तेरे को करना है तो तू कर, I am okay with whatever I am doing. बट वो धोनी था थोड़ा सा कि उसको एक पैशन है, उसने वहां पे एक नल लगाया और पाइप लगा दिया।
वो पाइप जब उसका लग गया तो इट वाज अमेजिंग। उसको जितना पानी चाहिए था, जब चाहिए था, मिल जाता। आसपास के लोग उसके पास आए, अपना कनेक्शन मांगा, दूसरे विलेजेस से आए, कनेक्शन मांगा, तो ही वाज गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम देम। तो अदर पीपल वर वर्किंग फॉर हिम इन लाइफ आल्सो। Believe me, 95% people are simply bucket carriers. Hardly 5% people, they prepare the pipeline. So where you would like to go? To prepare the pipeline, to make the pipeline, or just to carry the bucket? What should we do? Prepare the pipeline. Yes, तो एक अपने को पाइपलाइन बना। इसीलिए आप देख लीजिए दुनिया का 95% of the wealth is being possessed by hardly 5% of the people, and rest 5% wealth is possessed by being you and me. Does it mean वो मेरे से और आपसे 10 गुना काम करते हैं? No, they do the same thing in a different way. They know how to get the work done by the money. Money is they say that money is a good servant, but a bad master. Money किसके लिए काम करता है? नौकर किसके लिए काम करता है? अपने मालिक के लिए काम करता है। Let the money work for me. मैंने मनी के लिए बहुत काम किया। Let me think what money can do for me. और मनी तो कहती है कि फर्स्ट यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। लेकिन हम भी क्या कह देते हैं? फर्स्ट यू कम टू मी, देन आई विल वर्क फॉर यू। एंड मनी ऑलवेज सेज फर्स्ट यू वर्क फॉर मी, देन आई विल वर्क फॉर यू। दिस इज क्वाइट सिंपल। सो इट्स वेरी सिंपल। इनको अपने को समझना चाहिए। हार्ड वर्क जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंडिया, एक लास्ट में 2-3 चीजें आपको मैं और बता दूं। अपने आप का माइंडसेट जो है, इंडिया बन के नहीं, इंडियन बन के नहीं, इंडिया बन के देखना। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। डोंट टेक इट लिटरली। मैं जस्ट टू एक्सप्लेन, इंडिया में बहुत इंडियन माइंडसेट पुअर हो गया है ज्यादा। ओनली हार्ड वर्किंग, ओनली पुअर माइंडसेट हमारा हो गया है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। देखिए हमारे घर में एक मुझे एग्जांपल अभी ध्यान आता है बैठे बैठे कि हमारे घर में नॉर्मली यू टेल मी, मैं कोई अपवाद की और एक्सेप्शंस की बात नहीं करता। नॉर्मली हमारे घर का फाइनेंस कौन देखते हैं? मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स। नॉर्मली मेल। एंड नॉर्मली घर गृहस्थी के काम कौन देखता है? फीमेल। नॉर्मली एक अच्छी फैमिलीज में भी नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो ऑल आर, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम सॉरी किसी को अदरवाइज, बट द पॉइंट इज ये तो हुआ इंडियन मेंटालिटी। घर गृहस्थी का काम जनानियों का है, औरतों का है, फीमेल्स का है, लेडीज का है, और फाइनेंस का काम मेरा है, हमारा है, पुरुष वर्ग का है। आप इंडिया बन के देखिए, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अ फीमेल और अ मेल? Who is the finance minister of India? के लिए घर में अपना दम भरते हैं कि नो, दिस इज माय कप ऑफ टी, दिस इज माय जुरिस्डिक्शन। वो हिंदुस्तान में एक महिला दिख रही है। इट नेवर मीन जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, या जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। एज फार एज अर्निंग इज कंसर्न, कोई भी देयर इज हार्डली एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया के लिए इसीलिए कहते हैं ना, इंडिया इज ए रिच कंट्री, वी आर पुअर पीपल लिव्स। डजंट साउंड इट कॉन्ट्राडिक्टरी? If India is a rich country, how poor people can live? And if the poor people are there, how could be considered as a rich country? तो ये वाली चीजें थोड़ा सा एक माइंडसेट की अपने को जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर को आप देख लीजिए। और हैप्पीनेस के लिए, फॉर आवर हैप्पीनेस वी डोंट नीड पीस ऑफ फाइनेंस alone, we need financial peace to keep ourselves happy. और ये चीजें जो हमने बात की हैं, that should not only in our brain, ब्रेन में तो पढ़ के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, दैट शुड बी, ये हमारे खून में आ जानी चाहिए, हमारे ब्लड में ये चीज आ जानी चाहिए। ऑक्सीजन और पैसा दोनों चाहिए बच्चों लाइफ के लिए। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, हम कोई साधु महात्मा नहीं है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट लेकिन सब चीज के लिए बहुत कुछ से ये कमी भी नहीं है। एंड मनी इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, एक फिगर से मनी का मेजरमेंट होता है, नॉट इन वर्ड्स। और एक जगह मैंने वो एक चीज पढ़ी थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मिलिट्री में वो एक अच्छी हैबिट्स के लिए थी, और क्योंकि अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं और आप लोग अभी यू आर टू यंग फॉर दैट, वहां पे ये लिखा हुआ था कि इफ यू स्वेट, यानी शुरू में मेहनत करो तो बाद में बहुत अच्छा रहता है। पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है, पर जो मैं समझ पाया वो ये था, इफ यू स्वेट अ लॉट इन टाइम्स ऑफ पीस, if you sweat a lot in times of peace, you bleed less in times of war.
तो लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, अनपढ़ वो नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं जानते, अनपढ़ वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। स्मार्ट वर्क करें, काम ऐसा करें कि हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा एक्सपीरियंस बढ़े, हमारी रिचनेस बढ़े, लेकिन स्मार्ट वर्क का तरीका यही होता है कि हमारा समय उसमें कम से कम लगे। दिस आई कॉल व्हाट द फाइनेंशियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट। टू रूल्स, वॉरेन बफेट के 2 रूल याद रखिए। रूल नंबर 1, डोंट लूज योर मनी। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। सो ये कुछ चीजें थी जो आपसे मैंने शेयर की। आई थिंक टाइम इज नॉट परमिट मी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली हियरिंग। Thank you, sir. Thank you. The students have any question, they can ask the question or they can put it into the chat box. Yeah. If you have any question, you can definitely ask the question. जी सर, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू मे मेल इट, नो इशू। Definitely, sir. Definitely. So, students, if you have any question, you can send it to me. I'll definitely ask from the Veer sir. सर, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। इनफैक्ट मैंने उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है बिकॉज वो टेक्निकल टर्म्स में वो दैट जी बिल्कुल some people may find it uncomfortable. बिल्कुल, it was actually very simple, but definitely the concept of savings and even the compounding, that's again a very good concept. And since it is little bit difficult, but you have explained in a very simple manner that what is the compounding. Even these are the students, we have the final year students of MBA and first year also. So actually these people are not earning at this time. Some of the students are actually earning, but they will understand the concept of saving, and definitely in the future life they will definitely convert their money into the wealth, right? Yes. So I feel students are very happy they actually got something from this session. And sir, we have with us Dr. Abhijit Chatterjee. So sir is actually the head of the department. So Abhijit sir, okay, he's little bit busy, I suppose. He's little bit busy. So Abhijit sir, okay, he's busy. So I invite Dr. Abhikriti Shukla to propose vote of thanks. Please, ma'am. Thank you, Rekha ma'am. A very good afternoon to all. As it is said, that gratitude is the healthiest of all the emotions. The more you express for what you have, the more likely you will have even more to express gratitude for. With these words, I, Dr. Abhikriti Shukla, Program Co-Coordinator, MBA, feels privileged to propose vote of thanks for today's expert lecture on Financial Literacy and Awareness Program. On behalf of Sri Vaishnav Institute of Management, I extend my sincere vote of thanks to our guest speaker, CA Mr. V.K. Jain, for sparing his valuable time and sharing his knowledgeable experiences and insights with us in the area of investors' education. Thank you very much, sir. I also extend my most sincere thanks to Dr. George Thomas, Director, SVIM, for his guidance in organizing this event. We all are grateful to Dr. Arvind Singh, Joint Registrar, Sri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, for his valuable inputs to make this event an effective one. I especially thanks to Dr. Abhijit Chatterjee, Head, Department of Management, for his unflinching support and guidance, which resulted in the flawless execution of today's event. I also extend my sincere thanks to Dr. Shama Pechinkar, Head, Department of Computer Science, for her valuable support in framing this successful event. I'm thankful to Dr. Pragya Sharma, Coordinator MBA Program, and Dr. Meghna Tiwari, Coordinator BBA Program, for their support. I owe special gratitude to Finance Club coordinators Dr. Rekha Melwani and Dr. Namrata Soni for organizing today's event, which is valuable and effective one for all our MBA students in real sense. Thank you very much, ma'am. Last but not the least, my sincere thanks
to all our dear students of MBA program whose active participation has made this event successful and worthy. Last, thanks to all and have a good day ahead. Over to you, Rekha ma'am. Thank you, Abhikriti ma'am. Thank you very much. Thank you, जैन सर. आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया और इतने सिंपल मैनर में हमारे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स से सब कॉन्सेप्ट समझाए. Thank you, sir. Thank you. So we are closing the session. Before that, the students, you will get the link for the feedback form. वो आपके ग्रुप पे भेज दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको फिल कर दीजिएगा, right? So thank you very much and good day to everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank